الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ تمام میڈیا کے دوستوں کا شکریہ کہ آپ جو ہے اتنے شارٹ ٹائم پہ شارٹ نوٹس پہ آئے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج جو ہے وہ بجٹ اناؤنس ہونے جا رہا ہے بلوچستان کا. اور بلوچستان کا ہمیشہ جب بھی بجٹ بنتا ہے فائنانشیل کنسٹرینٹ کی وجہ سے ہمارا جو بجٹ ہے اس کو بنانے میں یقیناً مشکلات ہوتی ہے. اس میں دو سیریس ایشو ہے. ایک یہ ہے کہ ہمارا جو نان ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ 600 بلین سے زیادہ ہے، اور ہمارا جو اوورال سائز ہوتا ہے وہ اس سال اباؤٹ 1 ٹریلین ہوگا. یعنی آپ کا 2/3 بجٹ جو ہے وہ نان ڈیولپمنٹ سیلریز کی مد میں، باقی گرانٹس اور ان کی مد میں چلا جاتا ہے. ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کے پاس ایک چھوٹا سا کوشن جو 300 ارب روپے کا وہ ہمیشہ رہتا ہے، جس کی وجہ سے بلوچستان میں جو ان پیرلل ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے اس کی ایک مین وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو فیڈرل گورنمنٹ سے این ایف سی کی مد میں جو 9 پوائنٹ سم تھنگ جو ہے وہ ملتا ہے، اس کے علاوہ ہماری ریونیو جنریشن اتنی نہیں ہے جس طرح باقی پروونسز کی ہے. اس سلسلے میں جو انفلیشن ہے، مہنگائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے 1-2 سال میں مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوا ہے. اور ہمارے ملازمین جتنے بھی ہے، ملازمین طبقہ ہے، ان کی ہمیشہ جب بھی بجٹ بنتا ہے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مہنگائی کی شرح کے مطابق ان کو تنخواہیں دی جائے. لیکن گورنمنٹ کے پاس چونکہ کوشن اتنا نہیں ہوتا، اس مرتبہ جو گرینڈ الائنس ہے ان کے ساتھ کل سے ہمارے مذاکرات جاری ہے. 3 دور مذاکرات کے ہوئے، اور انہی چیزوں پہ ہم نے کنونس کیا. تمام مسائل جو گورنمنٹ آف بلوچستان کے ہیں وہ ہم نے بتائے، اور گورنمنٹ کی پالیسی بھی بتائی ہے کہ چونکہ کولیشن گورنمنٹ ہے، پیپلز پارٹی لیڈ کر رہی ہے میر سرفراز بگٹی کی قیادت میں، اور پیپلز پارٹی ہمیشہ پرو ملازمین رہی ہے. کوشش یہی کرتی ہے کہ ملازمین کو ریلیف دے جس بھی صورت میں ہو. تو کل کی مذاکرات کے بعد آج ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ میں شکر گزار ہوں گرینڈ الائنس کے آرگنائزنگ کمیٹی کا، ان کی لیڈرشپ کا، کہ انہوں نے جو احتجاج کی کال دی تھی کہ آج مختلف کن کے ڈسٹرکٹ سے لوگ آئے تھے، انہوں نے اس حوالے سے احتجاج کرنا تھا، وہ مؤخر کر دیا. وفاقی سطح پہ جو بھی سیلری میں انکریمنٹ ہوئی ہے گورنمنٹ آف بلوچستان بھی اس کے مطابق جو ہے ہم اس میں اضافہ کریں گے. اور باقی جو ان کے حل طلب ایشوز ہیں ان کے حوالے سے سی ایم بلوچستان سے ہماری بات ہوئی کہ ایک ہائی لیول کی کمیٹی جو ہے وہ نوٹیفائی کریں گے، اور ان کے مسائل کو ہم بیٹھ کے وہ حل کریں گے، چاہے وہ جن بھی ڈپارٹمنٹس کے ہو، جس بھی حوالے سے ہو، جن میں فائنانشیل امپلیکیشنز ہو یا باقی لیجسلیشن کے حوالے سے ہو، رولز ریگولیشنز کے حوالے سے ہو. ان سارے مسائل کو انشاءاللہ ہم حل کریں گے باہمی رضامندی کے ساتھ، مل بیٹھ کے. سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں تاکہ یہ ایک جو کلچر ہے وہ ہم ختم کر سکے. تو میں انتہائی مشکور ہوں گرینڈ الائنس کی لیڈرشپ کا کہ انہوں نے ہماری جو گورنمنٹ کی بات ہے وہ مان لی. جو انکریمنٹ پاسبل تھی وفاقی طرز پہ وہ ہم نے انشاءاللہ آج جو ہے وہ ہماری بجٹ سپیچ میں وہ اناؤنس ہوگی. قدوس صاحب وہ کون سے چیدہ آپ لوگوں کے جو ایشوز تھے جن پر یقین جانا. بہت شکریہ آپ کے میڈیا کا. آپ نے ہمیشہ کی طرح ہماری آواز جو ہے وہ سماج تک اور مقتدر جو قوتیں ہیں یا جو ہمارے ارباب اختیار ہیں ان تک ہم ہمیشہ ہماری آواز بنتے رہے اور پہنچاتے رہے. اور میں خصوصی طور پہ شکر گزار ہوں میڈم منسٹر رائلہ صاحبہ کا اور منسٹر ہیلتھ جناب بخت محمد کاکڑ صاحب کا، منسٹر فائنینس میر شعیب نوشروانی صاحب کا، کہ انہوں نے ہمیشہ کی طرح آگے بڑھ کر جو بھی گرینڈ الائنس کے بلوچستان گورنمنٹ کے ساتھ جو ایشوز تھے اس کے اندر ایک مثبت اور ایک پازیٹیو اور ایک خوشگوار جو ہے انہوں نے انیشیٹیو لیا. جس طرح بخت صاحب نے پورا میکینزم آپ کے سامنے رکھا کہ ہمارے مذاکرات کے 3 دور ہوئے اور ہمارے جتنے بھی ایشوز تھے ان کے اوپر جو ہے وہ سیر اصل گفتگو ہوئی. ہم اس نتیجے پہ ہم پہنچے جس کا اعلان جو ہے وہ بخت محمد کاکڑ صاحب نے منسٹر صحت نے آپ کے سامنے کر دیا ہے کہ ایک تو تنخواہوں کے اندر جو انکریز ہے اور جو ڈسپیرٹی الاؤنس ہے، ریڈکشن الاؤنس ہے،
वो बिल्कुल वफाक की तर्ज पे के तर्ज पे उसके अंदर इजाफा होगा। बाकी हमारे जो सर्विस के हवाले से या दीगर बहुत सारी इश्यूज़ थे, या जो हमारे एक रिमेनिंग कोई 10% हमारा DRA था, उनके लिए एक हाई लेवल की एक बाख्तियार कमेटी के तश्कील पे इत्तेफाक हुआ है। उस कमेटी का ऐलान जो है वो आज बजट सेशन में होगा, और उसकी नोटिफिकेशन और उसकी केमिस्ट्री के बाद के ऊपर जो इंशाल्लाह बाद में बात होगी। तो ये पूरी एक सूरत हाल है जो आपके सामने बख्श साहब ने भी रखी और मैंने भी आपके सामने रखी थी। जी मैडम बात करेगी तो मैडम अनाउंस किया वहाँ पर प्रेस क्लब के सामने भी मुलाजमीन ने एहतजाज किया। वो कह रहे थे कि उसमें टीचर एसोसिएशन भी थी, दीगर जो है महकमे के मुलाजमीन भी थे, सिर्फ ग्रैंड अलायंस भी थी। अगर ग्रैंड अलायंस अगर मुतमिन है तो बाकी जो महकमे के मुलाजमीन हैं जो लीडरान है वो भी आपसे मुतफिक होकर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए या वो एहतजाज करेंगे अलग? कल वो जो वफाक के अंदर या पंजाब के अंदर जो वो प्रेस वो बजट आया था वो उस हवाले से था। बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस में कोई 40+ हमारे साथ बलूचिस्तान भर की तमाम तंजीमें हैं, और अभी शायद इस सिस्टम के अंदर कोई ऐसी तंजीम नहीं रही है जो बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस के फोरम का हिस्सा ना हो या हमारे यहाँ उनके रजिस्ट्रेशन ना हो। बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस बलूचिस्तान में मौजूद तमाम तंजीमों के एक नुमाइंदा फोरम है, और ये कमिटमेंट और ये डिसीजन जो यहाँ हुई है ये बलूचिस्तान भर के तमाम एसोसिएशंस, यूनियंस, लेबर यूनियंस, फेडरेशंस और तमाम बलूचिस्तान के तमाम मुलाजमीन की तरफ से। मैडम सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया कि आप आज आए, और जिस तरह से मेरे कोलीग ने बताया आपको, हेल्थ मिनिस्टर ने, काकड़ साहब ने, देखें ये हमेशा से होता है जब भी बजट आता है तो मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं अपनी डिमांड्स रखती हैं। सबसे पहले तो मैं फ़ेडरल बजट की बात करूंगी क्योंकि इनकी डिमांड्स में भी यही था कि फ़ेडरल बजट के मुताबिक जो है आप हमारे जो भी अलाउंसेस हैं उसके मुताबिक करें। और फ़ेडरल बजट हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब एक बहुत ही बैलेंस्ड और आवाम दोस्त बजट लाए हैं, कोशिश की है, काफ़ी चीज़ों पर रिलीफ दिया है उन्होंने। हमेशा से तनख्वाहदार तबके को जो है हमेशा रिलीफ दिया जाता है। इस दफ़ा भी ज़ाहिर बात है निगोसिएशन होती है, बातचीत होती है, तो वो भी उसमें भी जो है फ़ेडरल ने बड़े अच्छे उनको जो है रिलीफ दिया है जो हमारे सैलरी पर्सन हैं। अब जब यहाँ पर ये लोग आए तो हमसे बातचीत हुई, हम 2-3 दफ़ा बैठे इनके साथ, तो इनकी बात पता चली और फिर हम CM साहब के पास लेके गए इस इशू को, और उन्होंने बड़े हमदर्दाना तरीके से इस बात को सुना। और अब आपके सामने है कि हम इस आज के बजट में जो है वो इसको अनाउंस करेंगे कि चीज़ें जो भी इनकी डिमांड्स थी तकरीबन वो हैं। बाकी कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जो कि यकीनन तवज्जो तलब हैं, और हम उस पर आगे जो है कमेटी की शक्ल में जो नोटिफाई होगी, और जिसमें एजुकेशन, हेल्थ और जो भी मिनिस्ट्रीज़ का उनमें रोल है वो साथ बैठेंगे और स्टेप बाय स्टेप इनके इश्यूज़ को हल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इंशाल्लाह देखिए हम सब एक हैं, और हम मिनिस्टर इसीलिए हैं कि हम इनके मसले हल करें और ये भी अपने मसाइल को एक अच्छे तरीके से टेबल टॉक के ज़रिए हल किया जाए। तो दुनिया में तमाम मसले जो हैं टेबल टॉक के ज़रिए ही हल होते हैं। मैं हमेशा इस चीज़ की जो है वो मेरा स्कूल ऑफ थॉट यही है। तो मैं समझती हूँ कि आज भी हमने ये जो 3-4 दौर बैठे मुज़ाकरात के, उसके बाद ही हम इस नतीजे पे पहुँचे और उनके मसले काफ़ी हद तक हल हो चुके हैं, जो बड़ी डिमांड्स थी उनकी, और जो बाकी हैं वो भी कोई ऐसे नहीं है कि जो हल नहीं हो सकते। इंशाल्लाह कुछ ही अरसे में हम देखेंगे कि इनकी बाकी चीज़ें भी जो हैं हम हल करेंगे। अच्छा, गुरु साहब ये बताइएगा कि वज़ीर आला साहब ने पहले ही बता दिया था कि वफाक तर्ज पर मुलाज़मीन की तनख्वाह में इजाफा करेंगे, तो आप लोगों ने एहतजाज फिर समझ नहीं आती कि क्यों किया? क्या जो रवायत बन गई है उसके मुताबिक एहतजाज लाजमी था आप लोगों ने जो ऐलान किया, या पस पर्दा कुछ और भी मामला होते हैं जो हमेशा ये बातें आती हैं कि और भी जो यूनियंस के मसले होते हैं जो उनको हल करने के लिए इस टाइम बजट के टाइम पर जो है ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की जाती है? हमारी ये तहरीक जो है बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस की, आप मीडिया से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हो कि हमारी ये तहरीक जो है वो कोई 4 महीने के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है, जिसके अंदर कोई 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं और पूरे बलूचिस्तान में रैलीज़ हुई हैं, मुज़ाहरे हुए हैं, ब्लैक डेज़ हमने सेलिब्रेट किए हैं, और प्रेस क्लब कोयटा के ऊपर और पूरे बलूचिस्तान में प्रेस क्लब्स के ऊपर
हमने जो है वो अपना कैंप्स जो हैं हमने लगाए हैं। ये पूरा एक तहरीक चला है जिसके मुख्तलिफ पड़ाव रहे हैं। हम ये समझते हैं कि ये जो एक हमारी एक तहरीक थी बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस की, ये जो हमें रिलीफ मिला है, ये उन तमाम जो पड़ाव के नतीजे में ज़ाहिर गवर्नमेंट के सामने तमाम चीज़ें थी कि मुलाजमीन अनरेस्ट पे हैं, और हमने पहले भी यही डिमांड बहुत पहले रख दी थी कि हम हमारे जो सैलरीज़ के अंदर इंक्रीज़ है या DRA वगैरह जो है हमें बिल्कुल उस तरह चाहिए जिस तरह वफाक इसको ऐलान करेगा। तो हम ये समझते हैं कि ये सारी चीज़ें एक तरफ हमारी तहरीक चलती रही है, गवर्नमेंट ने उसी चीज़ को जो है वो इंडोर्स करते हुए इसके ऊपर जो एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है जिसको हम अप्रिशिएट करते हैं। सर जामियात की क्या सूरत हाल है, क्योंकि स्कूलों के लिए फंड्स होते हैं, कॉलेजेस के होते हैं जिनकी तादाद सैकड़ों में होती है, चंद गिनी चुनी जामियात हैं जो रोज़ अव्वल से रो रही हैं, 18वीं तरमीम के बाद वो सूबों के हवाले हुई, उनका क्या हाल है? जी मैडम मिनिस्टर। उसमें देखें मसला ये था कि HEC जो है इसको फेडरल से भी हमें फंडिंग होगी। अब आज से कुछ अर्सा साल पहले जो है हमारे पास 2-3 जामात थे, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ थी, और आज जो हैं वो 11 यूनिवर्सिटीज़ और 13 कैंपसेस हैं जो कि आगे बढ़ के 17 तक जा रहे हैं, और अभी बाकी पाइपलाइन में है। तो फंडिंग वही थी और जो आज से 13-14 साल पहले थी, और हमारी तादाद बढ़ गई। तो ये था, और ये तो जब से मैं मिनिस्टर बनी तो मैंने हायर एजुकेशन पे ख़ास तौर पे तवज्जो दी, क्योंकि वो सारे सड़क पे बैठे थे आपके सामने, और मैं ही हम लोग गए, और थैंक्स टू आवर CM मीर सरफराज भुट्टी साहब, हमने उन्हें बताया, शायद चीज़ें उस तरह से पहुंचती नहीं थी उधर उस वक्त, या क्या मसला था, तो हमने उन्हें बताया कि इस वक्त ये सिचुएशन है और ये चीज़ें हैं। तो हमने पहले हमें 1.5 अरब जो है वहाँ से मिलता था HEC से, और 1.5 अरब हमारा 2.5 अरब था, हमारी गवर्नमेंट ने उसे 5 बिलियन कर दिया। ये भी तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ कि यूनिवर्सिटीज़ के लिए 5 बिलियन, और हमने अभी मज़ीद जो कैलकुलेशन की है यूनिवर्सिटीज़ के लिए, मेरा भी आपकी तरह यही क्वेश्चन था कि मेरा टीचर को वक्त पे तनख्वाह मिल जाती है, मेरे कॉलेज को असातिज़ा को मिल जाती है, मेरा प्रोफेसर बेचारा सड़क पे क्यों आता है? क्योंकि आपको पता है कि ये ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, इनका अपना एक सिस्टम होता है, ये अपने तौर पे चलती हैं, इनकी अपनी सिंडिकेट होती है, अपना सेनेट होता है, अपना बजटिंग चीज़ें होती हैं, जो लेकिन हम गवर्नमेंट के तौर पे उनको ग्रांट देते हैं, नॉट एज फुल। तो हमने उसके लिए अब हमने जो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको जो क्वेश्चन था, तो उसके लिए अब हमने कैलकुलेशन की है, और हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि सिर्फ सैलरी की मद में कम से कम हमें 14 बिलियन चाहिए, उस पर उसके बाद ये मसले हल होंगे, क्योंकि वक्त के साथ साथ इंक्रीज़ भी हुआ इनके स्टाफ में, चीज़ों में भी, तो इस वजह से हमने अपनी कैलकुलेशन बेहतर करके बता दी है। देखें इसमें हम इंशाल्लाह एक अच्छी न्यूज़। अच्छा, नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों साथ बैठी हुई हैं, दोनों अहम वजारतें भी आपके पास है, आज का दिन बलूचिस्तान के लिए अहम है, क्या समझते हैं बलूचिस्तान के लिए बजट आज पेश करने जा रहे हैं? इत्तेहादियों को भी एतमाद मिली है और अपोजिशन को भी एतमाद मिली है, ला क्या रहे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला तालीम से देखें इस मरतबा पहली मरतबा तमाम जितने भी कोलिशन पार्टनर्स हैं, CM बलूचिस्तान ने उनकी बाकायदा एक कमेटी बनाई जिन्होंने उस पर बड़ी डेलिब्रेशन के बाद, मैंने पहले ही कहा कि हमारे पास सिर्फ 300 अरब रुपए जो है वो आपके डेवलपमेंट के बजट के रह जाते हैं। अब उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए जिससे एक अच्छा आपका सोशल और इकनॉमिक इम्पेक्ट उसका हो, उसके लिए बाकायदा जितने भी हमारे कोलिशन पार्टनर्स हैं दे आर ऑन बोर्ड, और उन सब की मर्ज़ी से सलाह और मशवरे से जो है इंशाल्लाह एक अवाम दोस्त और बैलेंस बजट होगा, जिससे यकीनन सेहत में और तालीम के शोबे को जो है वो हमेशा लास्ट टाइम भी